Hello students, welcome in English class. How are you all? And hopefully you all are fine, staying safe at home. So today myself Dr. Zara I have come here with another chapter from the diary of Anne Frank. And it has been taken from the diary of Anne Frank. So the writer herself is Anne Frank. And in this particular chapter, a small portion from her diary has been taken. Some of her experiences of the school life is explained in this chapter. Before starting the chapter, let me ask you students, how many of you have the habit of writing diary or writing any kind of thing like stories or poems or any other of that sort? देखिए, जिन बच्चों को डायरी लिखने की आदत है वो जानते हैं कि किस तरह से आप डेली चीज़ों को, जो आप डेली की रूटीन है, आप डेली बेसिस पे आप लिखते हैं या फिर कभी आप कुछ गैप्स के बाद लिखते हैं, लेकिन डेली के एक्सपीरियंसेस आप एक डायरी में या किसी जगह आप दर्ज करते हैं. इट्स वेरी गुड. और इसमें जब आप एक चीज़ ये भी समझिए कि जब आप उस डायरी को कभी अपने किसी एज के आगे के पड़ाव में जब आप उसको पढ़ते हैं तो यू गो बैक टू योर मेमोरी लेन एंड there you start living those moments once again, and it's a very good experience. If those who have the habit of writing diary, they know, but those who have not developed, they can develop. It's a very good habit. So this was all about the thing what a diary means and what kind of things one write in diary. But here in this chapter, Anne Frank has mentioned some of the events and some of the things that she has gone through in those days. So before moving on to that chapter, let's go on and read what before you read. Anneliese Mary Anne Frank, born on 12 June 1929 and died in February-March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister, Margot Frank. So students, you must know before reading the चैप्टर, ये बैकड्रॉप है, इसका बैकग्राउंड है कि एन फ्रैंक, हर फुल नेम इज एनालीज मैरी एंड शी वॉज अ जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल. शी वॉज बॉर्न इन जर्मनी बट शी वॉज अ जेविश गर्ल. और उसने ये डायरी जो लिखी या जो अपने एक्सपीरियंसेस लिखे एक डायरी में, उसने उस समय लिखे जब इसकी फैमिली छिप रही थी अपने कुछ दोस्तों के साथ. ये एम्स्टरडैम में छिपे हुए थे और यहाँ पर ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय का ये पूरा सीन है जहाँ पर नाजीज ने जर्मनी के ऊपर पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ था. उसके ऊपर उतना कंट्रोल ले लिया था, जर्मनी को कंट्रोल में ले लिया था और वहाँ पर नाजीज ने अपनी चीज़ों को फैला रखा था और जेविश लोग जो थे उनके लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी. तो इनके पूरे नाजीज के जो पावर होने की वजह से जर्मनी के ऊपर, तो यहाँ पर इनकी पूरी फैमिली जो थी वो छिप गई एक जगह, और वो जगह थी एन के फादर ओटो फ्रैंक के ऑफिस में. और 2 साल तक वो लोग उस जगह छिपे रहे और उसके बाद फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया गया कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम में, जहाँ पे एन की डेथ हो गई. टाइफस एक बीमारी है, टाइफस से डेथ हो गई. और वहीं पर उसकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक की भी डेथ हुई, लेकिन अपने सिस्टर के बाद उनकी डेथ हुई. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of Young Girl. तो बच्चों की डायरी जो एन ने लिखी थी वो डच लैंग्वेज में लिखी थी, लेकिन जब सब खत्म हो गया, फादर केवल अकेले सर्वाइवर थे, और जब वो एम्स्टरडैम में अपने कैंप से वापस आए जहाँ पे ये लोग छिपे हुए थे,
तो वहाँ पे जब उन्होंने देखा तो डायरी मिली। किसकी डायरी मिली? एन की डायरी मिली, जिसको उसको गिफ्ट में उसके पेरेंट्स ने दी थी। और उस डायरी को जब उन्होंने पढ़ा तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये एक रिकॉर्ड के फॉर्म में रखा जा सकता है कि नाजीज के उस दौर में क्या क्या चीज़ें हुई और एक बच्ची ने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की, और इसीलिए उसको पब्लिश कराया गया इंग्लिश में और अब बहुत सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश कराया गया, और इस नाम से पब्लिश कराया गया था, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। So students, this was the background of the chapter, and here let us see what Anne has written. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many other languages and became one of the world's most widely read books. There have also been several films, televisions, and theatrical productions, and even an opera based on the diary. Described as the work of mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एन फ्रैंक को ये जो डायरी मिली थी, ये डायरी जो मिली उसको ये उसके बर्थडे पे 13th बर्थडे पे मिली थी एज अ गिफ्ट, इसके पेरेंट्स ने दी थी। और इसमें जो एंट्री की थी एन ने, वो एंट्री जो थी वो 12 जून 1942 से लेके 1944, यानी कि 2 साल की बीच की एंट्री थी, ये 2 साल की एंट्री थी। और इस एंट्री में एन ने वो सारी चीज़ें लिखी, उसमें सारी चीज़ें उसने बयान की हैं जो कि डच लैंग्वेज में उसने लिखा। बाद में वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली चीज बुक वो बन गई। और इस बुक के बेस पे बहुत सारी पिक्चर्स और थिएटर और टेलीविज़न, बहुत सारी प्रोडक्शंस ने इस पे काम किया और ओपेराज भी इस पे हुए। और ये इसको ऐसे कंसिडर किया गया कि एक ये बहुत मैच्योर्ड या किसी इनसाइटफुल माइंड ने लिखा है, यानी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन ने लिखा है जो आगे की चीज़ों को समझ रहा है, जान रहा है, उस तरह के मैच्योर्ड इंसान द्वारा लिखा गया ये काम समझा जा रहा था, क्योंकि डायरी में एन ने बहुत अच्छे से चीज़ों को मेंशन किया था। और एक उस डायरी से ये भी पता चलता है कि कैसे नाजी ऑक्यूपेशन के समय लोगों ने किस तरह का एक एक्सपीरियंस था और किस तरह से लाइफ को लीड की थी। और उस समय एन फ्रैंक जो है इस डायरी या इस बायोग्राफी के माध्यम से, ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से, वो उसने जो है सबसे ज़्यादा टॉक्ड या मोस्ट रिनाउंड ऑथर बन गई, या विक्टिम जो थी हॉलोकॉस्ट, यानी कोई एक बहुत बड़ा प्रलय हो गया, हॉलोकॉस्ट यानी प्रलय होना, किसी प्रलय की विक्टिम जो थी, सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड विक्टिम वही थी, क्योंकि उसने अपने डायरी में चीज़ों को मेंशन किया था। So now let us start the chapter. Writing in a diary is really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. यहाँ पर एन डायरी स्टार्ट करती हैं और उसमें लिखती हैं कि डायरी जो लिखना है वो एक बहुत अजीबोगरीब काम है। वो क्योंकि और स्पेशली उनके एज के बच्चों का डायरी लिखना बहुत अजीबोगरीब काम है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये डायरी जो है, मैं लिख तो रही हूँ लेकिन कौन पढ़ेगा, हु विल टेक इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा कि एक 13 साल की लड़की, स्कूल जाने वाली लड़की, उसने डायरी लिखी है, उसमें दिनचर्या लिखी है, उसने अपने डेली के काम को लिखा है या अपने बारे में लिखा है, तो वो कौन उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो किसी बच्चे की सोच उसमें है, उसकी चिंतन है, उसकी म्यूजिंग्स है, तो वो कौन पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। ये सब सोचने के बाद भी फिर भी उसको लगा कि नहीं, मुझे डायरी लिखनी चाहिए और मेरे अंदर जितनी चीज़ें हैं, जो भी मैं सोच रही हूँ, वो कहीं ना कहीं जज्ब होना चाहिए, कहीं ना कहीं जाना चाहिए, इसलिए मुझे राइटिंग करनी है और मुझे डायरी में लिखना है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल।
I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. Wondering whether to stay in or go out, I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो यहाँ पर ये बच्ची देखिए कितनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात उसने लिखा कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कि लोगों में इतनी पेशेंस नहीं है, लोग किसी की बातों को नहीं सुनते या सुनते भी हैं तो उनमें इतना मादा नहीं होता कि उसको अपने तक पचा के रखें। अगर किसी ने अपनी कोई बात किसी को बताई है एज अ फ्रेंड समझ के, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रेंड के पास वो बात सेफ रहेगी, कहीं ना कहीं वो बात जो है एक मुंह से दूसरे कान तक जाएगी ही जाएगी। तो इसी वजह से एन यहाँ पे कहती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी पेपर आपकी बातों को भी सुनेगा, आप जितना लिखेंगे वो एब्जॉर्ब करेगा, और उसके पास ये क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है तो आपकी बातों को किसी तक वो नहीं फैलाएगा ना पहुंचाएगा अनलेस एंड अनटिल कोई उसे पढ़े। तो उसे ऐसा लगता है कि उस समय का ये थॉट जो है वो सही था, क्योंकि वो जो भी चीज़ अपने अंदर महसूस कर रही है वो किसी से कह तो सकती नहीं, लेकिन कम से कम पेपर में वो लिख सकती है और पेपर उसकी चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा। ये उसने इसलिए कहा क्योंकि वो बहुत डिप्रेस फील कर रही थी, घर पे अकेली बैठी थी, उसको कहने को बहुत सारी चीज़ें थी और वो कुछ कह नहीं पा रही थी, वो किससे कहे, क्योंकि वो बहुत बोर हो रही थी, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो घर पे रहे या कहीं बाहर जाए। तो फाइनली उसे ऐसा लगा कि नहीं, पेपर में मैं जो लिखूंगी, जो भी मैं डायरी में लिखूंगी वो ज़रूर डायरी तक सीमित रहेगा और मैं तब तक वो किसी को नहीं दिखाऊंगी जब तक मेरे जीवन में कोई एक रियल फ्रेंड नहीं आ जाता। तो तब तक मैं वो डायरी लिखूंगी, क्योंकि मैं डायरी को, क्योंकि एन ने आगे बताया है कि वो उस डायरी को अपना फ्रेंड समझती है, क्योंकि उसके जीवन में कोई फ्रेंड है नहीं, तो इसीलिए उसने सोचा कि उसे डायरी लिखनी चाहिए। नाउ I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. And I am not. I have loving parents and 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everythings. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. So यहाँ पे एन बताती है कि वो बिल्कुल डायरी लिखेंगी और डायरी लिखने को उन्होंने बिल्कुल प्रायोरिटी दी है, फर्स्ट प्लेस पे है, और क्यों वो ये लिखना चाह रही है उसका एकदम स्पेसिफिक रीज़न दिया है एन ने। एन ये कहती है कि उसके जीवन में वो बिल्कुल अलोन है, उसका ऐसा कहने का मतलब इसलिए नहीं है कि भाई वो बिल्कुल उसके साथ कोई नहीं है, उसका कहने का मतलब ये कि उसके पास सब कुछ है, उसके लविंग पेरेंट्स हैं, उसके पास एक बड़ी सिस्टर है जो कि उससे बड़ी है, 16-year-old सिस्टर है, बहुत सारे लोग हैं जिनको वो फ्रेंड कहती है, लेकिन हर वो बंदा जिसको आप फ्रेंड कहते हैं, आप उसके ऊपर हर चीज़ उसके साथ आप शेयर नहीं कर सकते। तो ये सतही रूप पे जो है, सुपरफिशियली इसके पास तो कहने के लिए सरफेस पे सारे लोग हैं, लेकिन एक चीज़ उसके लाइफ में मिसिंग थी और वो थी ट्रू फ्रेंड की, क्योंकि ट्रू फ्रेंड वो होता है जो आपके हर चीज़ को समझ सकता है, आपके कहने के बगैर वो जान जाता है और आपके जो भी इमोशंस हैं या आपकी जो भी बातें वो अपने तक रखता है। एज अ फ्रेंड तो वो सबको मानती है कि भाई गुड टाइम अगर किसी के साथ बिताना है और उसके लिए कोई चाहिए फ्रेंड, तो वो है उसके पास है। उनके पास वो ऐसे लोग थे जिनको फ्रेंड कहती थी, उनके साथ एक अच्छा टाइम गुजारती थी, उनके साथ घूमने जाना, गेम्स खेलना और भी चीज़ें जो एक आम फ्रेंडशिप में होती है। लेकिन जहाँ तक अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें शेयर करने की बात आई या फिर कुछ अपने बारे में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें डिस्कस करना है, तो वहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि वो
इतना ट्रस्ट नहीं करते, डोंट कन्फाइड, यानी वो पर्सनल थिंग या कोई भी ऐसी चीज जो है वो नहीं बताना चाहते। क्यों? क्योंकि उसका वहां पे ट्रस्ट नहीं होता है। और यही वजह थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, और उसे ऐसा लगा कि ये चीज़ें वो उसके जीवन में चेंज कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जीवन में कभी ऐसा फ्रेंड आया ही नहीं, या हो सकता है ना आए। और इसीलिए उसने क्या सोचा, दैट्स वाई शी स्टार्टेड राइटिंग द डायरी, एंड दिस इज ओनली बिकॉज शी डिडंट हैव a friend with whom she can share her things, her private things, her personal things. Okay, so that's why she started writing the diary. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. यहाँ पे एन कहती हैं कि मैं एक नॉर्मल, जिस तरह से लोग डायरी लिखते हैं कि भाई रोज का दिन रूटीन उसमें डिस्कस कर दिया, आज हमने ये किया, आज वो किया, आज हमने इनसे मिले, आज उनसे मिले, ऐसी चीज़ें मैं नहीं लिखना चाहती कि एक इवेंट के फॉर्म में उसको दर्ज किया जाए, बल्कि मैं उसको एक फ्रेंड मानती हूँ। और जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ चीज़ें डिस्कस करते हैं, बिल्कुल मैं उसी फॉर्म में वो डायरी लिखना चाहती हूँ। और उसीलिए उसने उसका नाम रखा किटी, क्योंकि वो डायरी को डायरी ना समझ के, एक ही कोई रूटीन बुक न समझ, रिकॉर्ड न समझ के उसने उसको फ्रेंड समझा, और इसलिए उसको नाम दिया किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वेयर टू प्लंज राइट इन, I'd better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so. तो उसने बोला कि कोई भी अगर एट रैंडम मेरी डायरी पढ़ेगा तो किसी को भी कुछ समझ में आने वाला नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मैं अपनी स्केच यानी अपनी लाइफ के बारे में उसमें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ना बताऊं, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड को ये अपना बैकग्राउंड बताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि बताना ज़रूरी है, तभी मेरी डायरी को जो पढ़ेगा वो समझ पाएगा। So now she has started describing her life and telling about her life. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. तो यहाँ पर एन बताती हैं अपने पेरेंट्स से इसने शुरू किया कि फादर जो थे, जब फादर मदर की मैरिज हुई तो फादर 36 ईयर्स के थे, मदर 25 ईयर्स की थी, एंड उसको एक सिस्टर भी थी जो कि फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी में है उसमें वो वहाँ पे वो पैदा हुई थी, और एन उसके 3 साल बाद पैदा हुई थी, और ये लोग इकट्ठे जो है फ्रैंकफर्ट में रहे, और तब तक एन फ्रैंकफर्ट में रही जब तक वो 4 साल की नहीं हो गई। My father immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with my grandmother. Margot went to Holland in December, and I followed in February, when I was plunked down on the table as birthday present for Margot. I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6. At which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Kupris, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. तो यहाँ पर एन बताती कि 4 साल की उम्र तक तो वो फ्रैंकफर्ट में थी, उसके बाद उनके फादर को हॉलैंड जाना पड़ा, वो हॉलैंड में माइग्रेट हो गए, और फादर मदर दोनों वहाँ पहुँच गए 1933 में। और मार्गोट यानी कि एन की बड़ी सिस्टर और एन ये अपनी ग्रैंड मदर के पास एकिन में रह गए। बाद में हॉलैंड मार्गोट भी हॉलैंड चली गई, और वहाँ पे एन को भी भेजना पड़ा, और लेकिन एन जो थी उसको एक गिफ्ट के फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट यानी कि बर्थडे प्रेजेंट के फॉर्म में उसको वहाँ पे लिया गया, वहाँ पे बुलाया गया। क्यों? क्योंकि पहले उसकी सिस्टर पहुंच गई थी, और उसके सिस्टर के बर्थडे पर ही उसको बर्थडे प्रेजेंट के फॉर्म में मार्गोट के उसको वहाँ पे लिया गया था। इसके बाद एन की स्कूल लाइफ स्टार्ट हुई, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में एडमिशन लिया। उसकी जो टीचर थी मिसेस क्यूपरस थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते थे दोनों एक दूसरे को, वो बहुत लाइक करती थी अब दोनों एक दूसरे को। और जब ये जाने लगी
तो जब ये जाने लगी वहाँ से, एंड जब उसका वहाँ की पढ़ाई ख़त्म हो गई तो दोनों एक दूसरे को देख के फेयरवेल देते हुए बहुत रो रही थी। और ये उसकी स्कूल लाइफ थी। और समर में ग्रैंड मदर इनकी जो है 1941 में इनकी ग्रैंड मदर बीमार पड़ी बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया उनको। इसीलिए उस साल जो है एन का जो बर्थडे जो था बहुत हल्के फुल्के तरीके से मनाया गया, वहाँ पे कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया गया। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well, and that brings me to the present day of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो यहाँ पर ग्रैंड माँ जो थी बीमार पड़ी, और फिर एक साल के बाद 1942 नेक्स्ट ईयर वो जो है एक्सपायर कर गई, डेथ कर गई। लेकिन एन ने अपनी डायरी में मेंशन किया कि किसी को नहीं पता, लेकिन मैं डायरी को बता रही है कि मैं बहुत अपनी दादी को, अपनी ग्रैंड मदर को मैं बहुत लव करती हूँ और अभी तक उनको बहुत मिस करती हूँ, याद करती हूँ। ये चीज़ें एन ने अपनी मदर को नहीं बताई, अपने फादर को नहीं बताई, लेकिन ये चीज़ें उसने डायरी में लिखी। और वो कहती कि किसी को पता नहीं है, सिर्फ डायरी तुम्हें पता है। और जिस साल दादी की डेथ हुई उस साल जो है, उस साल उसका जो बर्थडे हुआ वो भी बहुत ग्रैंड नहीं सेलिब्रेट हुआ, लेकिन मनाया गया। और ग्रैंड मदर जो थी उनकी उनके सामने, उनके तस्वीर के सामने कैंडल जलाई गई, और वहाँ पर उनके पेरेंट्स ने उनको ये डायरी गिफ्ट की थी। और वो ये बताती है कि सब कुछ ठीक है, हम 4 लोग हैं, मैं, मेरी सिस्टर और मेरे पेरेंट्स, और हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और आज का दिन है जो 20 जून है 1942, और मैं अपना सारा जो है अपनी डायरी में ये सारी चीज़ें डेडिकेट कर रही हूँ, मैं अपनी डायरी में लिख रही हूँ। तो उसमें से एक इवेंट जो है, उस डायरी में से एन का एक इवेंट जो क्लासरूम इवेंट है उसको लिया गया है, और वो कैसे एन ने डिस्क्राइब किया है वो हम आगे पढ़ते हैं। शी रोट ऑन दिस थिंग ऑन सैटरडे, दैट इज 20th June 1942. Dearest Kitty, our entire class is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. तो यहाँ पे क्लासरूम का एक सीन है, किट्टी को बता रही है एन कि पूरी क्लास जो है बड़ी नर्वस सी है, शेकिंग विद फियर। क्वैकिंग इन बूट्स मीन्स शेकिंग विद फियर, या नर्वस है, पूरी क्लास टेंशन में है। और टेंशन का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो आगे आने वाली जो मीटिंग है, जो टीचर्स आपस में एक डिसीजन लेंगे, टीचर्स की एक मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग में ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन अगले क्लास में जाएगा और कौन उसी क्लास में रह जाएगा। मतलब एक तरह से रिजल्ट बनने वाला है, और उस रिजल्ट के आने के वजह से ये बच्चे जो हैं वो टेंशनाइज्ड हैं, और क्लास में एक दूसरे से शर्त लगाई जा रही है, मेकिंग बेट्स, यानी शर्त लगाई जा रही है कि मैं पास नहीं होऊंगा, तुम पास होगी। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और एन और उसकी फ्रेंड जीएन ये लोग लाफ कर रहे हैं, यानी एक दूसरे वो हंस रहे हैं पूरी क्लास पे, और अपने ऊपर भी हंस रहे हैं। और स्पेशली उनको हंसी आ रही है उनके पास जो बैठे हुए 2 लड़के हैं, सीएन और जैकस, और ये इस बात पे हंस रहे हैं कि भाई इन लोगों ने तो अपनी पूरी गर्मी की छुट्टी की जो सेविंग की थी वो पूरी इन्होंने अपने बेड पे लगा दी, शर्त में लगा दी। From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. I'm not so worried about my girlfriends and myself. We'll make it. The only subject I am not sure about is math. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. So यहाँ पे एन कह रही है कि पूरे दिन रात यही चल रहा है कि तुम पास हो जाओगे, मैं पास नहीं होंगी, तुम पास हो जाओगे, मैं पास नहीं होंगी, एक दूसरे के लिए शर्त लगा रहे हैं।
और सारे लोग जो है परेशान है क्लासरूम में, और एन को गुस्सा आ रहा है, वो चिल्ला रही है कि क्लास चुपचाप बैठे, लेकिन कोई चुप नहीं हो रहा है। यहाँ पे एन कहती है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बता सकती हूँ कि आधे एक चौथाई क्लास जो है, यानी क्लास के एक चौथाई बच्चे जो हैं वो डमीज हैं, यानी वो कुछ नहीं पढ़ते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहती है, बट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। इसका कहने का मतलब ये कि एन ये कह रही है कि उन लोग को तो अगली क्लास में नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बिल्कुल डमी है, उन्हें कुछ नहीं आता है। लेकिन मैं अपनी टीचर्स के बारे में भी नहीं कह सकती कि वो क्या आगे कर सकती हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, जो नहीं होना चाहिए वो भी कर जाती हैं। तो यहाँ पे उनको ऐसा लगता है, एन को ऐसा लगता है कि आई एम नॉट सो वरीड अबाउट, मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो गर्ल फ्रेंड्स हैं और खुद एन, वो तो पास हो जाएंगे, लेकिन इन लड़कों के बारे में वो बहुत श्योर नहीं है। लेकिन एन एक तरफ से घबराई भी है, उसे ऐसा लगता है कि एक सब्जेक्ट है जिसमें वो खुद भी सशंकित है, खुद भी शी इज नॉट श्योर, एंड दैट सब्जेक्ट इज मैथ। मैथ उसको टफ लगता है, और मैथ में उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मैथ में मुझे दिक्कत आए, मेरे नंबर कम आ जाए। लेकिन फिर भी एनी कहती है कि नहीं, हमको वेट करना चाहिए और हमको एक दूसरे को सांत्वना देनी चाहिए कि हम सब पास हो जाएंगे, हम लोग को डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old Foji who teaches math, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework and essay on the subject a chatterbox. तो यहाँ पर एन कहती है कि मेरे को तो जो जितने भी मेरे टीचर्स हैं वो सब मुझे अच्छे लगते हैं, मैं भी उनको अच्छी लगती हूँ, और उनके यहाँ 9 टीचर्स हैं जिसमें 7 मेल हैं और जो 2 हैं वो फीमेल हैं, विमेन टीचर्स हैं। उनमें से वो जिक्र करती है मिस्टर कीजिंग का, जो कि एक बड़े ओल्ड फैशन शख्स हैं और वो मैथ पढ़ाते हैं। एन को ऐसा महसूस होता है कि वो हमेशा उससे अनॉयड रहते हैं, यानी हमेशा उसे गुस्से में रहते हैं, हमेशा उसे परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि एन की आदत है वो बहुत बात करती है, और उसके इस बात करने की आदत से वो हमेशा उससे नाराज रहते हैं। और बहुत वार्निंग दी उन्होंने कई बार, टीचर्स नहीं, क्लासरूम में होता है बच्चे, आप लोग की भी आदत है, बहुत बात करते हैं सारे क्लास में, आप लोग जहाँ 2-3 फ्रेंड्स मिले नहीं, आप लोग की बातें शुरू हो जाती है। आई डोंट नो व्हाट इज देयर ऑन अर्थ टू टॉक सो मच, बट स्टिल स्टूडेंट्स हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग, एंड ये हैबिट जो थी एन में कुछ ज़्यादा थी, और इसको रोकने के लिए उसके सर जो है मिस्टर केजिंग, उन्होंने कई वार्निंग दी, लेकिन एन का बात करना नहीं रुकता था। अल्टीमेटली उन्होंने एक एक्स्ट्रा होमवर्क एक दिन उसको दिया, और वो एक्स्ट्रा होमवर्क था एक ऐसे लिखना था, और वो ऐसे था एक चैटर बॉक्स पे। तो यहाँ पर ये एन ने अपने टीचर के बारे में एक छोटी सी बात इस डायरी में लिखी। अब आगे देखते हैं कि ये होमवर्क होने के बाद क्या करती है एन। A chatterbox? What can you write about that? I'd worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. तो chatterbox क्या होता है? ये कौन सा टॉपिक होता है? इस पर क्या लिखा जाएगा? तो वो सोचती रहती, फिर बोलती छोड़ो हटाओ, इसको मैं बाद में सोचूंगी। वैसे उसने अपने बुक में उस टॉपिक को नोट डाउन कर लिया, अपने बैग में बुक भर ली, कॉपी भर ली, और वो चुपचाप बैठ गई। That evening, after I'd finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kazin had assigned me, and I was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. तो यहाँ पर जब वो घर आती है, अपना होमवर्क ख़त्म कर लेती है, तो उसके बाद उसके दिमाग में हो जाता है, वो नोट जाता है, उसकी आँख में पड़ती है वो कितनी कॉपी, तो सोचती है कि अरे इस पे भी तो मुझे लिखना है, और क्या लिख सकती हूँ मैं। तो सोचती चलो ये भी तो हो सकता है कि ये पता नहीं कैसा ये ऐसा सब्जेक्ट है, इस पे बड़े बड़े शब्द लिख के बहुत सारी जगह छोड़ देंगे, 3 पेजेस में मैं ख़त्म कर लूँगी। लेकिन फिर क्या होता है, एन को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं लिखना है, मुझे
कुछ ऐसी चीज उसमें डालनी है, कुछ ऐसी चीजों को के माध्यम से प्रूव करना है कि नहीं, चैटिंग जो है वो बहुत अच्छी चीज है। चैटिंग बहुत अच्छी चीज़ है और वो मुझे करनी चाहिए और उसको कोई हटा नहीं सकता, और उस चैटिंग की ज़रूरत को, यानी कि बात करने की ज़रूरत को वहाँ पे उससे प्रूव करना है। और ये चीज़ जब वो सोचती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसमें वो 3 पेजेस का एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखती है जो मिस्टर केजी ने जो टॉपिक उसको प्रोवाइड किया था उसके ऊपर। और उसमें वो आर्ग्यूमेंट देती है, उसमें वो तर्क करती है कि नहीं, जो बात करने का जो शौक है या बात करने की जो चीज़ बच्चों में होती है वो स्टूडेंट्स को विरासत में मिली होती है, वो स्टूडेंट्स का ट्रेट होता है। ट्रेट यानी जो उनको हेरिडिटी उनको मिला होता है, विरासत में मिला होता है। और वो ये बोलती है उसमें कि उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखने के बाद अंत में वो लिखती है कि मैं इस विरासत को तो नहीं बदल सकती, लेकिन इस पर कंट्रोल ज़रूर करूँगी। और आगे लिखती है कि बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो यहाँ पर और भी एक तर्क देती है कि भाई मैं ये हैबिट है मेरी, ये मेरी आदत है और आदतें बदली नहीं जा सकती। और वो ये कहती है कि ये आदत शायद मुझे अपनी मदर से मिली है, मदर से मैंने इनहेरिट किया हुआ है और इसीलिए मैं इस पर कंट्रोल तो कर सकती हूँ लेकिन मैं इस आदत को बदल नहीं सकती। ये आर्ग्यूमेंट सुन के देन मिस्टर केसिन हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. I handed it in and Mr. Kazin had nothing to complain about the other two whole lessons. However, during the third lesson he'd finally had enough and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. तो यहाँ पर पहला तो नोट पढ़ा मिस्टर केजी ने, हंसे उसके आर्ग्यूमेंट पे और फिर 2 अगले लेसन के लिए चुप हो गए, उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिली। लेकिन जब सेकेंड टाइम जब फिर उसको बात करते हुए पकड़ा तो उस टाइम फिर उन्होंने एक नया उसको होमवर्क पकड़ा दिया और वो नया होमवर्क क्या था, एन इनकॉरिजिबल चटरबॉक्स, यानी ऐसा चटरबॉक्स जिसे आप करेक्ट नहीं कर सकते। और फिर उस टॉपिक पर भी एन ने लिखना शुरू किया और लिखने के बाद जो है उसने मिस्टर केजिन को हैंड ओवर किया। और इस बार भी मिस्टर केजिन ने पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद 2 क्लासेस तक तो कुछ नहीं बोले वो, लेकिन फिर थर्ड क्लास में थर्ड लेसन जब करने बैठे फिर से वहां देख रहे हैं कि एन बात कर रही है, बात करने से बाज नहीं आ रही है, तो फाइनली उन्होंने एक और उसको पनिशमेंट दी और इस बार उनको एक ऐसे लिखने को बोला, टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो इस टॉपिक पे अब एन को लिखना था। द क्लास रोर्ड, आई हैड टू लाफ टू, दो आई had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sane, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. अब तीसरी बार जब ये टॉपिक मिला, क्वैक 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 सेड चैटरबॉक्स, तो यहाँ पर ये टॉपिक सुनने के बाद पूरी क्लास को हंसी आ गई और अपना मजाक बनते हुए देख के एन ने खुद अपने ऊपर हंसना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो थक चुकी थी क्योंकि ये जो टॉपिक था, ये इस टॉपिक पे फिर से नए आइडियाज या ओरिजिनल या कोई इन्वेंटिव चीज कहाँ से आएगी, मतलब ओरिजिनल भी हो और कुछ नई चीजें भी उस टॉपिक में कैसे आएंगी, क्योंकि ये चैटर बॉक्स पे ऑलरेडी 2 बार वो लिख चुकी थी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे कुछ और चीज ट्राई करनी चाहिए, कुछ दूसरी चीज ट्राई करनी चाहिए, कुछ ओरिजिनल ट्राई करना चाहिए। और इसी में उसकी फ्रेंड सैन, जो कि एक पोएट्री राइटर थी जो अच्छा पोएम लिख सकती थी, उसने बोला कि भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगी और अब तुम जो है उसको ऐसे के फॉर्म में मत लिखो, उसको एक पोएम के फॉर्म में लिखो, वर्स यानी पोएम के फॉर्म में लिखो। और ये आइडिया सुन के उसे बड़ा अच्छा लगा और वो बिल्कुल खुशी से कूद गई। अब यहाँ पर केजिन, उसको ऐसा लगता है कि जो उसके टीचर हैं मिस्टर केजिन, वो उसका मजाक बनाते हैं, उसका क्लास में कोई ना कोई बहाने से एक मजाक बना रहे हैं। तो और ऐसा सब्जेक्ट देके, इस तरह का सब्जेक्ट, ऐसा कोई टॉपिक देता है क्या, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब इसको ऐसा लगता है कि नहीं, अब इस बार मैं कुछ ऐसा लिखूंगी कि जिससे मेरा मजाक ना बने, इससे
उनका ही जोक बन जाए, उन पर ही मजाक हो जाए. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by father because they quacked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. अब यहाँ पर अपनी पोएम उसने लिखी, अपनी फ्रेंड की हेल्प से बड़ी सुंदर पोएम लिखी, बड़ी ब्यूटीफुल लाइंस में उसने अपने पोएम को गठित किया. और उस पोएम में उसने जो कैरेक्टर्स रखे थे वो थे यहाँ पे मदर डक थी और एक फादर स्वान थे, एक फैमिली थी जिसमें उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे. और उस पोएम में उसने ऐसा लिखा कि भाई ये 3 डकलिंग्स जो हैं उसके अपने फादर द्वारा मारे गए क्योंकि वो बहुत बात करते थे. और ये जो पोएम थी इससे ये एक चीज़ ये भी साबित किया एन ने, इससे प्रूव किया कि भाई बात करना कोई जुर्म नहीं है और इतने बड़े जुर्म के लिए ऐसी सज़ा, इतनी से जुर्म के लिए ऐसी सज़ा हो गई. तो वो वहाँ से एक तरह से टॉन्ट कर रही थी अपने टीचर को कि भाई बात करना तो कोई ऐसी ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार मुझे ऐसी पनिशमेंट्स मिल रही हैं. और जब इस चीज़ को मिस्टर केजिन ने पढ़ा तो एन को लगा कि नहीं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया है, राइट वे में लिया है और वो एक जोक के फॉर्म में लिया है. ही रेड द पोएम to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kazin's always making jokes these days. तो यहाँ पर उसने जब ये दिया पोएम लिख के तो वो बहुत ही ज़्यादा उसको पॉजिटिवली लिया. उस पोएम को मिस्टर केजिन ने क्लास में भी पढ़ा, उस पर अपने भी कुछ कमेंट्स डाले और फिर उसको दूसरी क्लास में भी पढ़ा. और उनको ये इतना अच्छा लगा कि उसके बाद उसको परमिशन मिल गई क्लास में बात करने के लिए और कभी उसके बात करने की हैबिट पे टोक नहीं लगाई गई और कोई भी होमवर्क उसको एक्स्ट्रा होमवर्क इस फॉर्म में नहीं मिला. बल्कि एन ने उस दिन डायरी में ये मेंशन किया कि भाई उसके बाद से उसके जो टीचर थे मिस्टर केजिन, वो हमेशा उसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई फॉर्म में जोक्स करते थे. उनकी सीरियसनेस जो थी वो ख़त्म हो गई थी और वो भी बिल्कुल लाइट हार्टेड मोड में आ गए थे. Yours, and this is extracted from the diary of a young girl with slight adaptation. There are some changes being done in the diary, students, in this part, but entire thing has been taken from Anne's diary, that is the diary of a young girl. I hope so, students. You must have understood the chapter and you must have enjoyed the chapter as well. So, thank you for watching. Kindly like, share and subscribe. Also like, share and subscribe my another channel Zehra's Classes Hindi, where you will find Hindi lessons. And students, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of the chapters as soon as I upload it. So, thank you.